بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین وندبگین السلام علیکم. میں سید شفیع احمد آپ سے مخاطب ہوں. کہتے ہیں کہ ددیال اور ننیال سے ہمارا سلسلہ نصب حضرت ٹیپو سلطان شہید کے وفادار اور جانباز سپہدار سید غفار شہید سے جا ملتا ہے. اپنی تاریخ اور قومی ہیروز کو یاد رکھنا کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے دنیاوی زندگی پر شہادت کو ترجیح دی کیونکہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے. تم سے ہی اے مجاہدو جہان کو ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج جب ہر طرف مایوسیوں کا اندھیرا ہے، نا امیدی سے یقین کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے، تو ایسے میں جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان جھروکوں سے ایسے چمکتے دمکتے کردار ملتے ہیں جن کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک طاقت بنتے ہیں اور ہمیں ایک نیا جوش جذبہ اور ولولہ جاگ اٹھتا ہے. آج ہم صاحب شمشیر و شوکت، انجم تابان از فلک آزادی و حریت، پیکر عدل و شجاعت، واقف اسرار شہادت، حکمران سلطنت خداداد، شیر میسور، مجاہد ابن مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے ارادوں کو تقویت بخشیں گے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 221 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں پر ان کا نام نقش ہے. یہ مرد آہن پورے جنوبی ہندوستان کے مستحکم ترین حکمران تھے. ان کی ساری زندگی فرنگی راج کے خلاف جد و جہد میں گزری اور اسی جد و جہد میں اپنی جان قربان کر دی. حیدر علی اور ان کے جلیل القدر فرزند ٹیپو سلطان شہید نے میسور جیسی چھوٹی ریاست کو دنیا کے نقشے پر اتنا اونچا اٹھایا کہ فرنگیوں کے دلوں میں ٹیپو کا خوف طاری ہو گیا تھا. ٹیپو سلطان ایک محب وطن، مجاہد آزادی، زیرک سیاستدان اور معمار قوم جیسی اعلیٰ خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود متعصب انگریز مورخین نے انہیں کٹر پسند، اقتدار پرست جیسے الزامات محض اس لیے لگائے کہ یہاں کی قوموں کو لڑانا اور حکومت کرنا ان کا مقصد تھا. ٹیپو جنوبی ہندوستان کے وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کے سیاسی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. انگریزوں کو وہ اپنا کٹر دشمن سمجھتے، ان کا مخولہ اور اپنا کٹر دشمن سمجھ کر انہیں ہندوستان سے باہر نکال پھینکنے کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے. ان کا مخولہ کہ شیر کی ایک روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اسی طرح وہ سپاہی کی طرح زندہ رہے اور سپاہی کی طرح جان قربان کر دی. انہوں نے حکومت کے لیے اپنے نفس کا سودا نہیں کیا. اگر وہ ایسا کرتے تو فرنگیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے خاندانی حکومت قائم کر سکتے تھے. قول شاعر، بدشاہ ہو کے جیوں غیر کا قیدی بن کر، اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں سپاہی بن کر. سلطان کی پیدائش سن 1750 عیسوی میں دیونہلی ضلع کولار صوبے کرناٹک میں ہوئی اور اس وقت کی بہترین تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے والد حیدر علی کے ہمراہ سیاسی و جنگی مہارت حاصل کی. وہ ہمت اور بہادری، جوش و جذبے میں اپنے والد سے بھی آگے تھے. ان کا دماغ ہر وقت بے چین، سرگرم اور مستعد رہتا. انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر جبکہ وہ محض 12 یا 13 سال کے تھے اپنے والد حیدر علی کے ہمراہ مالابار کے معرکے میں شریک ہوئے تھے. میسور کی پہلی جنگ میں انہوں نے نظام دکن سے اس مہارت سے گفت و شنید کی کہ نظام آپ سے متاثر اور خوش ہو کر آپ کو فتح علی خان کا خطاب عنایت کیا. اسی طرح راتوں رات ایک دشمن کو آپ نے دوست بنا لیا تھا. میسور کی پہلی اور دوسری جنگوں میں حصہ لے کر اپنی جنگی مہارت کا لوہا منوا لیا تھا. دوران جنگ حیدر علی کی وفات کے بعد سن 1784 عیسوی میں سلطان نے اپنی پوری طاقت اور جنگی مہارت سے حملہ کیا کہ انگریزوں کو سلطان کے ساتھ معاہدہ اور صلح کرنا پڑا. صلح منگلور کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان بھر میں وہی ایک شہزادہ تھے جن کی شرائط پر انگریزوں کو معاہدہ کرنا پڑا تھا. سن 1785 عیسوی میں سلطان نے مرہٹوں اور نظام کے ساتھ جنگ میں اپنی دھاک بٹھا دی، جس کا اختتام صلح نامہ گجیندر گڑھ پر ہوا، جس کے بعد سلطان ان پر یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر یہ تینوں طاقتیں مل جائیں تو ہندوستان میں انگریزوں کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی. لیکن سلطان کی تمام اپیلیں
सदा ब सहरा साबित हुई और उन दोनों ने वक्त की पुकार को नहीं समझा। जब टीपू को इन दोनों से मायूसी हुई तो उन्होंने बैरून मुल्क से मदद हासिल करने की कोशिश की गर्ज से फ्रांस, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान के हुक्मरान से राबिता किया। इस तरह सुल्तान के सामने दो अगराज थे। पहला ये कि फ़रंगियों के खिलाफ जद्दोजहद में सियासी और फौजी इमदाद हासिल की जाए, और दूसरा ये कि मुल्क में तिजारत, सनत और हिरफत को फ़रोग़ मिले और साथ ही साथ गैर मुल्की टेक्नोलॉजी की भी दरामद हो। इसी गर्ज से टीपू सुल्तान ने तुर्की के सुल्तान के पास अपना सफ़ीर भेजा, लेकिन रूसी हमलों की वजह से वो ब्रिटिश की मदद कुछ ना कर सका। वहाँ से मायूस सुल्तान ने फ्रांस में अपना सफ़ीर भेजा, लेकिन वहाँ के दाखिली इंतशार की वजह से वहाँ भी कामयाबी हासिल ना हुई और मदद ना मिली। 2 साल बाद टीपू ने ब्रिटिश के इत्तेहादी राजा ऑफ ट्रावंकोर पर हमला किया। इस जंग में मराठों और निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ इसलिए दिया कि उनकी नज़र मैसूर के सरसब्ज़ खित्ते पर अपना कब्ज़ा जमाना था। इस जंग की क़यादत करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस कलकत्ते से बनफ़ नफीस मैसूर आया। 6 फरवरी सन 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम पर अचानक हमला किया गया, जिसमें सुल्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और सुल्तान को अपनी आधी सल्तनत की दस्तबरदारी, 3 करोड़ रुपये तावान जंग और अपने 2 फर्जंदों को अंग्रेज़ों के पास रहन रखना पड़ा। टीपू अपने मजबूत इरादों में पीछे हटने वालों में से नहीं थे, लिहाजा उन्होंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी। नेपोलियन ने वादा तो किया, लेकिन उसे खुद मुल्क शाम से शिकस्त खुदा होकर वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान के शाह जमान से कुछ उम्मीद बंदी थी, लेकिन ब्रिटिश की अय्याराना चाल वहाँ भी काम कर गई और यहाँ से भी उन्हें मायूसी हुई। इस दरमियान ब्रिटिश ने निज़ाम और मराठों की तायद हासिल की और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने तमाम हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाने की नीयत से टीपू को एक ज़ैली इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी, लेकिन सुल्तान ब्रिटिश की ये चाल समझ गए और उन्हें साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में दोपहर ता शाम दो बदू लड़ते हुए मैदान जंग में अपने ही वफादारों की गद्दारी से शहीद हुए। सामईन, टीपू की हुब्बुल-वतनी की दास्तान के बाद अवाम अन्नास के लिए सुल्तान की खिदमत और कारहाय नुमायाँ करना भी तस्करा भी करना ज़रूरी है। सुल्तान ने मुल्क के निज़ाम में बेहतरी लाई। सन 1796 में अपनी ममलिकत जो 62,000 मुरबा मील तक फैली हुई थी, उसे 37 आसफ़ी यानी सूबों में तकसीम करके वहाँ आसफ, नायब आसिफ, अमलदार, पटेल वगैरह मुकर्रर किए। मरकज़ी हुकूमत के तहत 6 महकमे मसलन दिफा, महसूलियात, तिजारत, बहरिया, असला और ख़जाना थे, जो कि 4 वज़रा के मातहत थे। दिफा के वज़ीर को मीर मीरा, महसूलियात के वज़ीर को मीर आसफ, बहरिया के वज़ीर को मीरियम, असला और ख़जाने के वज़ीर को मलिकुत तुजार कहा जाता। टीपू के पास एक बाज़ाब्ता फ़ौज जो इन्फेंट्री, रिसाला और आर्टरी पर थी 1 लाख से मज़ीद थी। मंगलूर बहरिया का हेडक्वार्टर था, जहाँ 40 जंगी जहाज़ हर वक्त तैयार रहते। मुनज़्ज़म डाक का इंतज़ाम था, ज़राअत को तरक्की दी जाती और किसानों को तखावी खर्चाजात दिए जाते। दरियाई कावेरी पर एक बंद सीधे मेही के नाम से तामीर करने की बुनियाद रखी, जहाँ अब मशहूर कृष्णराज सागर डैम है और उसके दाखिली दरवाजे पर सुल्तान का वो कदवा भी लगा हुआ है। मवेशी पालन को भी फ़रोग़ दिया जाता और सुल्तान को जिद्दत और इख्तिरा का शौक़ था। कई शहरों के नाम बदल डाले। श्रीरंगपट्टनम में 5 टकसालें और एक अदालत आलिया क़ायम की। मुजरिमों को एक नए तर्ज की सज़ा दी जाती। हर मुजरिम को जुर्म की मुनासिबत से एक पौधा उगाने की और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती। मामूली जुर्म के लिए एक ऐसा दरख्त उगाने की जिम्मेदारी जिसमें कम मोहलत लगे और संगीन जुर्म के लिए आम, नारियल वगैरह के दरख्त उगाने की जिम्मेदारी दी जाती। सन 1792 ईस्वी के ज़ाबिते के मुताबिक सुल्तान का एक हुक्म था कि एक पगोड़ा जो कि सोने के 11 ग्राम के बराबर था, इसके बजाय जुर्माने की बजाय मुजरिम को 2 आम के दरख्त और 2 जामुन के दरख्त अपने गाँव के सामने लगाने और इसकी आबियारी और देखभाली उस वक्त तक जब तक ये दरख्त 3 डेरास की ऊंचाई तक न पहुंच जाए, जिससे मुल्क सरसब्ज़ो शादाब हो गया।
दुनिया में रॉकेट साजी और मिसाइल साजी के मौजूद सुल्तान ही जिन्होंने सन 1792 की जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रॉकेट बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया। नासा अमेरिका की म्यूज़ियम की दीवार पर सुल्तान के ईजाद करदा रॉकेटों और मिसाइलों की तस्वीर अब भी आविज़ा हैं। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान सूफ़ी थे जिन्हें मजहबी उलूम पर दस्तरस हासिल थी। मस्जिद आला के इख्तिताम के लिए उस शख्स को ये सादत दी जाने वाली थी जिसने ज़िंदगी भर नमाज ख़ज़ा ना की हो। जब कोई भी आगे ना बढ़ा तो सुल्तान को एजाज़ हासिल हुआ कि वो साहिब तरतीब थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कट्टर पसंद तो मुतासब थे। आपकी मजहबी रवादरी के बारे में महात्मा गांधी को ये कहना पड़ा कि टिप्पू के अपने रियाया के साथ ताल्लुकात नहायत दोस्ताना थे और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुहर्रिक थे। श्रृंगेरी मठ को लिखे गए खतूत मठों अग्रहार की देखभाली और ग्रांट उसका बैन सबूत हैं। नंजनगुड़ मैसूर ज़िले की नंजनडेश्वरा मंदिर को दीगर तहाइफ के अलावा कीमती सब्ज पत्थर का यानी संग एशब का बना हुआ लिंगा आज भी वहाँ मौजूद है। वहाँ के लिंग को हकीम नंजनडेश्वरा भी कहा जाता है। जब मेलकोटे की मशहूर मंदिर में उस वक्त ब्राह्मण अंगारों के दरमियान के दो गिरोहों के दरमियान निफाक हुआ तो सुल्तान ही ने उसको सुलझाया था और ये आज तक भी कायम है। टिप्पू के खिलाफ जहर उगलने का काम अब तक भी जारी है, आज तक भी जारी है। जब प्रोफेसर BN पांडे मौर्रिख और साबिक गवर्नर की नज़र से यूनिवर्सिटी की हिंदुस्तान की तारीख की टेक्स्ट बुक में टिप्पू सुल्तान की सबक पढ़ी, जिसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के संस्कृत के डिपार्टमेंट के डॉक्टर हरि प्रसाद शास्त्री ने यूँ लिखा था कि 3000 ब्राह्मणों ने इसलिए खुदकुशी की कि टिप्पू सुल्तान उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते थे। प्रोफेसर पांडे ने डॉक्टर शास्त्री को लिखा कि उन्होंने ये कहाँ से अख्ज़ किया है। 2-4 बार की याद दहानी के बाद उन्हें बताया गया कि मैसूर गज़ेटियर में है। मैसूर गज़ेटियर के एडिटर प्रोफेसर श्रीकंठैया से राबिता किया गया, जिन्होंने बताया कि मैसूर गज़ेटियर में यह वाक़या कहीं भी मौजूद नहीं है, बल्कि सुल्तान की मजहबी रवादारी के बारे में ये बताया गया कि सुल्तान का सिपह सालार कृष्णराव ब्राह्मण था, वज़ीर आज़म पूर्णया ब्राह्मण था। फिर भी ये कि 156 मंदिरों की फहरिस्त के साथ बताया गया कि जहाँ पर हर साल तोहफे और चढ़ावे सुल्तान की तरफ से भेजे जाते। सुल्तान के किले के अंदर श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर था। श्रृंगेरी मठ के वक्त जगत गुरु शंकराचार्य के नाम 1 दर्जन खतूत सुल्तान के लिखे हुए महफूज हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इन दोनों में बेहद मोहब्बत थी। अपने ज़माने में हिंदुस्तान के राजाओं और नवाबों में टिप्पू सुल्तान और वालिद हैदर अली ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर किसी को धोखा नहीं दिया। टिप्पू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों की कई बार जंगें हुई और आखिर में एक बहादुर वतन परस्त की तरह लड़ते हुए उन्होंने शहादत हासिल की। नामालूम लाशों के ढेर से जब उन्हें खोज कर निकाला गया तो अंग्रेज़ जनरल ने देखा कि उन्होंने तलवार की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ रखा था। सुल्तान अहले सैयद भी थे और अहले कलम भी। वो आमतौर से फ़ारसी ज़बान इस्तेमाल करते, लेकिन मकामी ज़बानों में भी उन्हें महारत हासिल थी। वो नहायत आसानी से नज़्म व नसर लिखते। सुल्तान की मुख्तसर उम्र अगरचे ज़्यादा जंग व जदल में गुजरी, मगर उन्हें तसनीफ़ व तालीफ़ का बेहद शौक़ था। श्रींगपट्टन में एक यूनिवर्सिटी जमील उमर के नाम से कायम की, जिसमें दीनी उलूम के अलावा उलूम व फ़नून की भी तालीम दी जाती। डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी अपने एक मजमून जो कि हफ्तावार पैम मशरिक़ दिल्ली मरखा 21 दिसंबर 1961 में शाये हुआ था, उसमें रकम तराज हैं कि 4 मई 1799 को टिप्पू सुल्तान ने जाम शहादत नोश किया और उसी रोज़ दौलत खाने ख़ास और महलात पर अंग्रेज़ी फ़ौज का कब्ज़ा हो गया। और इसी लूट में टिप्पू का कुतुब खाना भी अंग्रेज़ों के हाथ लगा, जो मुख्तलिफ मनाजिल तय करता सन 1838 सनवीस में इंग्लिस्तान पहुँचा और आजकल इंग्लिस्तान की एक लाइब्रेरी के ख़ास हिस्से में महफूज है। मज़ामिन के एतबार से इन किताबों को 20 उन्वानों के तहत तकसीम किया जाता है और किताबों की तादाद 2000 है। 20 किताबें अरबी और फ़ारसी में हैं, कुछ किताबें तुर्की ज़बान में भी, हिंदी और दक्कनी नज़्म नसर के भी बाज़ मुजल्लदात हैं। इस किताब खाने की एक बड़ी दिलचस्प चीज़ टिप्पू का ख्वाबनामा है। मालूम होता है कि टिप्पू को ख्वाबों पर बड़ा एतमाद था और वो हर रोज़ सुबह बेदार होने के बाद
रात का ख्वाब बड़ी एहतियात से एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं और जिसके बाद सुल्तान अपनी खास अलमारी में मुखफ़ल करके रखते हैं। एक ख्वाब जो सुल्तान उस वक्त देखते हैं जब उन्हें सन 1786 में बैक वक्त मराठों और निज़ाम से मुकाबला दरपेश था, उन्हें रोज़े महशर का नक्शा याद आता है जहाँ चारों तरफ नफसी नफसी की हालत तारी है। इसी आलम इस्तराब और इल्तिहाब में एकाएक एक निहायत खूबसूरत वजी और रोशन आंखों वाले बुजुर्ग आगे बढ़कर सुल्तान का हाथ थाम लेते हैं और पूछते हैं कि जानते हो मैं कौन हूँ? सुल्तान लाइल्मी जाहिर करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं मैं अली करमुल्लाह वजह हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हारे बग़ैर जन्नत में कदम नहीं रखूँगा और तुम्हें साथ लेकर जन्नत जाऊँगा। सुल्तान ख्वाब बयान करके लिखते हैं कि जब मैं जागा तो खुशी से मेरा तमाम जिस्म कांप रहा था। खुदावंद ने ताला खादिर मतलूब है, मुतलक है और रसूल पाक शाफ़ी रोज़े जज़ा हैं। हर किताब के सरवक्त के अंदर पहले सफ़े के आइन वस्त में पंजतन पाक और चारों कोनों पर खुलफाए राशिदीन के नाम दर्ज हैं। सफ़े की पेशानी पर सरकार खुदादाद और अल्लाह काफ़ी लिखा हुआ है। इकबाल यह है। मारूफ अदाकार और ड्रामा नवीस ग्रीश कर्नाड ने इन ख्वाबों पर मुबनी एक ड्रामा बनाम ड्रीम्स ऑफ टिपू या कन्नड़ ज़बान में टिप्पू विना कनसुगड़ू लिखा और स्टेज किया है, जो काफ़ी मकबूल है। अल्लामा इकबाल टिप्पू सुल्तान के मद्दाह और मुतक़िद थे और जिसे आप खुदी का एक आइडियल और मज़हर जानते थे। उसकी खाके पाक को बचश में खुद मुलाहजा करने की गर्ज से वहाँ जहाँ सिपारी और जहाँ बाजी का खूनी ड्रामा खेला गया था, इस खित्ते की बनफ्स नफीस सैर करना चाहते थे। लिहाजा आप जब सुल्तान के रोज़े पर पहुँचे तो 2-2.5 घंटा मुराक़बे में गुजार कर गुंबद सुल्तानी से बाहर निकले तो मैसूर के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद अब्बासेठ साहब ने आपसे पूछा कि आपको वहाँ क्या पैगाम मिला? आपने जवाब दिया कि वहाँ मेरा एक लम्हा भी बेकार नहीं गुजरा। एक पैगाम ये मिला है कि दर जहाँ नतवा अगर मर्दाना ज़ेस्त हम चु मर्दा सुपर्द जिंदगीस्त। मैसूर से वापसी पर अल्लामा ने 4 अशार का और इजाफा किया और यह खिताब बना कि आतिशी दर दिल दिगर बरकरद अम दास्तानी अदकन आवर्द अम दर किनारम खंजरे आईना फाम मी कुशम ऊरा बतदरीजे नियाम नुक्ता गोयम ज सुल्तान शहीद जाके बसम तल्ख कर रोज़ ईद पेशतर रफ्तम के बोसम खाके ऊ ताशनीदम अज मज़ारे पाके ऊ दर जहाँ नतवा आग मर्दाना ज़ेस्त हम चु मर्दा जान सुपर जिंदगीस्त। यानी मैं दक्कन से एक दास्तान लाया हूँ जिसने मेरे दिल में एक नई हरारत पैदा कर दी है। मेरे पहलू में आईना सा एक चमकदार खंजर है जिसे मैं धीरे धीरे बाहर निकाल रहा हूँ। सुल्तान शहीद के बारे में उनसे पाया हुआ एक नुक्ता बयान किया देता हूँ। मुझे डर है कि ईद की मसरतों में तलखी का रंग न भर जाए। मैं उनके मज़ार को बोसा देने के लिए वहाँ गया तो उनके मज़ार से एक नदा आई कि ज़िंदगी दुनिया में मर्दों की तरह जीने का नाम नहीं है। नदा आई कि ज़िंदगी दुनिया में मर्दों की तरह जीने का नाम है। जिंदगी दुनिया में मर्दों की तरह जीने का नाम है। ऐसा ना हो सके तो मर्दाना जान कुर्बान कर देना हयात जावदानी है। सफर मैसूर के बाद अल्लामा ने एक शाहकार जावेद नामा लिखा जिसमें पीर रूमी अल्लामा इकबाल से सुल्तान शहीद का यूं तारुफ कराते हैं कि आ शहीदान मोहब्बत रा इमाम आबरू ये हिंद चीनो रूम शाम ताबशश खुर्शीद व मह ताबंद तर खाक खबरश अज मनो तो जिंदा तर अज निगाह खाज बदरो हुनैन फ़ख्र सुल्तान वारिस जज्बे हुसैन रत सुल्तान जीन सराय हफ्तरोज नौबतो दर्दकन बाकी हनोस। यानी टीपू सुल्तान शहीद जो शहीदान मोहब्बत का इमाम है, जो हिंद चीन रोम शाम की आबरू है, जिसका नाम महव खुर्शीद से भी ज़्यादा ताबिंदा है,
جس کی خبر کی مٹی ہم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ زندہ ہے، جس نے عشق کا راز فاش کر دیا، یعنی انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ عشق اسے کہتے ہیں۔ اے زندہ رود، تو نہیں جانتا کہ اس نے کس شوق و ذوق کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ خواجہ بدر حنین سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کا فخر جذبہ حسین سے متصف ہے، اگرچہ کہ سلطان اس چند روزہ زندگی دارالفنا میں سے رخصت ہو چکا ہے، مگر ابھی تک اس کا شہرہ دکن میں باقی ہے۔ سامعین، ٹیپو سلطان کے 200 تقریبات کے انعقاد کے موقع پر روزنامہ سالار کے مدیر اعلیٰ جناب مقصود علی خان صاحب صابر ملسی نے ٹیپو سلطان کے زندہ جاوید کے تعلق سے ایک واقعہ یوں بیان کیا کہ شمالی ہندوستان سے غالباً علی گڑھ سے شیرانی صاحب جب شرنگ پٹم گنبد سلطانی پر حاضری دی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ رات یہیں انہیں گزارنے کی اجازت دی جائے، لہٰذا دوسرے دن انہوں نے یہاں کی مسجد میں نماز فجر پڑھی، جہاں امام صاحب کے علاوہ بشمول ان کے 2-4 مسلیان تھے۔ انہوں نے جیسے ہی رکعت بنی، انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور سفارہ ہو رہا ہے۔ رکوع و سجود میں ان لوگوں کی نقل و حرکت کی آوازیں مسجد میں گونجتی رہیں، اور حیرت اس بات کی کہ جب نماز ختم ہوئی اور سلام پھیرا گیا تو وہی 2-4 اشخاص میر مقصود علی صاحب کے بقول شیرانی صاحب نے انہیں بتایا کہ یا تو ان کا ایک ہیلوسینیشن یا سحر انگیزی تھی، یا پھر ایسا ضرور ہوا ہے کہ اس سے انہیں محسوس ہوا کہ سلطان آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ صرف اہلیان مشرق و اسلام ہی شیران میسور کی داستان حریت کے معترف نہیں، بلکہ ان کے اپنے زمانے کے اندر جب نئی دنیا یعنی امریکہ میں جارج واشنگٹن کی سربراہی میں امریکی قوم برطانوی سامراج کی غلامی سے آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اس وقت امریکی بحریے کے ایک بڑے جنگی بیڑے کا نام SS حیدر علی رکھا گیا، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شیران میسور نواب حیدر علی اور ان کے فرزند سعادت مند ٹیپو سلطان دلدگان حریت کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ آخر میں نسیم حجازی کے اقتصابات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شیر میسور کی فتوحات صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ بیک وقت ایک ایسا حکمران، عالم، مفکر اور مسلح تھا جس کے دل و دماغ کی وسعتوں میں اسلام یعنی ہند کی ماضی کی عظمتیں اور حال کے ولولے اور مستقبل کی آرزوئیں سما گئی تھیں۔ وہ ہمیں زندگی کے ہر دوڑ میں اپنے وقت سے کئی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی ریاست کا نمونہ پیش کیا تھا جبکہ ہندوستان کے نواب اور راجے اپنی ہڈیوں پر عشرت قدر تعمیر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بین الاسلامی اتحاد کی تنگ نظری، کمزوری، بے حسی اور باہمی رقابتوں کے باعث مغرب کے سامراجی بھیڑیوں کے لیے ایک عظیم شکارگاہ بن چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں اسلامی ادب مساوات کے جھنڈے گاڑے تھے جہاں صدیوں سے جہالت اور فلاس کی تاریکیاں مسلط تھیں۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو سے قبل میسور کے عوام کی تاریخ نہ تھی، لیکن ان کی حکمرانی کے چند برس پورے ہندوستان پر یہ چھائے رہے۔ جب ہندوستان کے عوام اپنے حال اور مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے تو میسور میں ہی حوصلوں اور روحوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ جب مشرقی ہندوستان کے قلعوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈے نصب ہو رہے تھے تو سلطنت خداداد کے یہ معمار شرنگ پٹم، بنگلور اور چتردرگ میں قوم کی آزادی کے نئے ہزار تعمیر کر رہے تھے۔ حیدر علی کے عہد حکومت کے آخری ایام میں ریاست ایک عظیم سلطنت بن چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ طاقتیں جو جنوبی ہندوستان میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتی تھی، اس کے خلاف متحد اور منظم ہو چکی تھی۔ انگریز میسور کو دلی کے راستے کی آخری دیوار سمجھتے تھے۔ میر نظام علی نہ صرف اہل میسور بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی ذلیل سودا بازیوں کا مسئلہ سمجھتا تھا، اور مراٹھے سلطنت خداداد مغلیہ کے گھنڈروں پر برہمنی استبداد کی عمارت کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ شیر میسور نے اس وقت
सल्तनत खुदादाद की जमाम कार अपने हाथ में ली थी जब भेड़ियों, गीदड़ों और गधों के लश्कर उसके कचार का मुहाजरा कर रहे थे, और उस वक्त उनके सामने सीना सुपर रहा, और जब तक उसकी रगों का सारा खून मैसूर की खाक में जश्न नहीं हुआ। सामीन और हाज़रीन बातमकीन नाज़रीन, हमारी तारीख़ मोहब्बत, मजहबी रवादारी, प्यार से भरपूर है, और उसी की बुनियाद पर बरसग़ीर में लोग पुरअमन तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान माजी से मुंसलिक होकर रहें और टिपू सुल्तान के अफ़कार पर अमल करते हुए हमें अमली तकाज़ों को निभाना होगा। ताज़ा खाही दाश्तन गर दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज़ खां ई क़िस्से पारे नारा। यानी अगर तू अपने सीने के दागों को ताज़ा रखना चाहता है तो वक्तन फ़वक्तन अपने पारिना क़िस्सों को पढ़ता रहे कि और इससे सबक हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।